Message to the new students, those who have just joined today and or a day before, is that you really don't have to take part in the test. I mean, you have to participate. You will have to tell the answers, but whatever score you get would not be a true analysis because you people are largely unprepared. Okay, so what you have to do is simply assess, given the fact that you are not prepared and you're going to attempt. Let's see what fate holds for you. But my message to the other participants is very simple and very clear. Now we had already predetermined the scope of the syllabus, okay, and we also have provided sufficient time. Now let's see that if 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, अब मान लो इसमें तुम्हारा जो भी स्कोर आता है उसको कैसे रैशनलाइज किया गया है वो बता देते हैं। तो 25 क्वेश्चंस में जो आपका स्कोर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4.8 से टू गेट एग्जैक्टली कि क्लैट में आपका स्कोर क्या होता। ठीक है, आपका जो भी स्कोर आएगा इस टेस्ट में, करेक्ट इनकरेक्ट और नेगेटिव मार्किंग हटा के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4.8 से। ये 4.8 क्या है? इट्स अ फैक्टर दैट विल रैशनलाइज योर करंट स्कोर टू योर क्लैट स्कोर, बिकॉज वी हैव आस्क्ड ओनली 25 क्वेश्चंस, right? So anybody is having any doubt with this? Anybody having any doubt how we are going to rationalize the score? इस टेस्ट में आपका जो भी स्कोर आएगा उसको आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है 4.8 से। फिर जो फिगर आए उसको मैसेज करिएगा ग्रुप में आफ्टर द क्लास, आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। नहीं हुआ है क्या ओपन? भगवान नहीं चाहते क्या मैं तुम्हारा टेस्ट लूँ? ऐसा हो रहा है। जस्ट अ मिनट। So 23rd to 27th January, target is how to get close to top 3. First question. सर आप म्यूट हैं। क्या बात कर रहे हो? मैं म्यूट हूँ क्या? ओ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। So yes, it is here. First question. Who among the following has been selected as a chairman of the 16th Finance Commission? सर सर अभी आप म्यूट हैं। First question. So we have who among the following is selected as the chairman of the 16th Finance Commission? अगेन द रूल्स आर सेम। टेक आउट अ ब्लैंक पेज, क्वेश्चन नंबर 1 का अपना आंसर लिखिए, लास्ट में हम आंसर डिस्कस करेंगे, आपको टिक क्रॉस करना है, फिर आपका स्कोर कैलकुलेट आप करेंगे। अभी क्वेश्चन पेपर में अपना आंसर लिखने के बाद चैट में भी अपना आंसर बताइए। ऑल राइट, चलो ग्रेट। ठीक है, सो वी हैव एवरीबडी मार्किंग द करेक्ट आंसर एंड दैट इज बी। गुड गुड। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ question number 2, you have to read this. It's a long question, and then there are statements, right? Which among the following statement is the correct reasoning associated with this paragraph? States from which large volumes of income tax revenue have been collected, argued to consider. Okay, read it.
All right. Option A. The states which are contributing less towards the income tax collection should have no share in the tax pool. Statement B. States which are contributing more in the income tax should be given a lesser share of tax. The states which are contributing more in the income tax are demanding higher pay, but it is difficult to identify the income is from the corresponding state or some other. The states which are contributing more income tax should be given more share in tax sharing, even if it is difficult to identify if the income is from the state or some other. A, B, C, D. We have time limitation also. Take a lot of time. Time's up. That's it. That's the get for this. And you can't skip. Have to. Come on, pick up. One for C, one for D, two for D, two for C, three for C, four for C, five for C, four for D, six for C, five for D, six for C, eight for C, nine for C, 10. So it's 10 versus 4. No, no, somebody has not answered. People with options D, please raise hand. Four people were there for D. Four people are there for D. So it's Raghav, Arpita, Ashish, and Shaurya. Great. We have four for D and almost 10 people for, I think 11 people for. Question number 3. The subcategorization of the scheduled castes is the recent demand by Madhika community. Which among the following statements are correct with respect to the recent as news? Madhika community belongs to the state of Maharashtra. The union government has constituted a high-level committee chaired by cabinet secretary. The demand was raised to increase the ceiling limit of reservation from 50% in public service only. All of the above. Among the following statements are correct with respect to the. All right, wait. Let's not be too quick to answer. Now, this is the technological limitation actually that I have. Had it been like I had a portal where you would be marking and nobody else could see what you have marked. This is the problem actually. One feature that is there in Zoom. Anyway, let's start. One person has already marked B. Others? Okay. Raghav, that logic won't prevail all the time. चलो आई विल नॉट बी टेकिंग अप आंसर्स अब. You will not be answering. हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे पेपर को तुरंत ही.
अब आप लोग अपने बस एक चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा मैं, हैव टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अदर्स आई थिंक पीपल विल गेट ए क्लू। अगर हम मार्क कर देते हैं ना तो एक पहले बाकी लोगों ने देखो मार्क कभी नहीं किया, कुछ ही लोगों ने आंसर, बाकी लोगों का आई थिंक क्लू मिल जाता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्वेश्चन पेपर में आप अपने सही ऑप्शन लिखिएगा, बस ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर थर्ड के अपने आंसर्स लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Which among the following organizations' licenses were cancelled recently by Ministry of Home Affairs under FCRA? Center for Policy Research, World Vision India, both A and B, and none of the above. It won't be the case that both A and B will always be correct. Okay, no, don't mark Suraj. Don't mark. Write it in your copy. राइट इट इन योर कॉपी, जो करंट अफेयर्स की कॉपी या जो पेज लेके बैठो, सिर्फ अपने आंसर्स उस मार्क मत, डोंट गिव क्लूज टू अदर्स, राइट। So, Center for Policy Research, World Vision India. Question number 4. Time's up. Let's move to the next question. Fifth. Which among the following statement is are correct with respect to FCRA? First, it stands for Foreign Contribution Regulatory Act. It was first enacted in 1976, subsequently repealed in 2010 with a new law. The act was recently amended in 2020. The initial registration is only valid for 5 years, which further can be renewed. Among the following statements are correct: A 1 and 2, B 2 and 2, 3 and 4, C 1, 2 and 3, D 1, 3 and 4. So that's like test of the knowledge, right? Which among the following statements? I think you can see the statements. Are we done? Let's move to the sixth question. Which among the following is not the correct synonym of orotund? Sonorous, bombastic, well, turgid. Which among the following is not the correct synonym of orotund? Again, this is from the Hindu only. This word is from the Hindu newspaper only. Marked? Question number 6. This question is Bangan. What is your favorite subject? Bangan. I remember that. Okay, 6 हो गया. Question number 7. The Ust-Luga seaport seen in the news is situated around which sea? The Ust-Luga seaport. It was there in the news. Baltic Sea, Black Sea, Caspian Sea, Red Sea, all of these seas were also in news with respect to the issues that are going on. So, Ust-Luga seaport seen in the news is situated around which sea? Baltic Sea, Black Sea, Caspian Sea, the Red Sea. So, what did I always tell you, that what notes you have to make from the Hindu? What, when, where, who. Now, this is where. Okay. So, this is where, location specific questions. Question number 7 हो गया होगा. Question number 8. मार्क कर लिए, वरना आपको माइनस निगेटिव हो जाएगा ये आपका. मार्क करते हुए चलिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है. 6 कर लिया एवरीबॉडी. आर वी डन विथ 6? Yes or no? Come on, speak up. Yes, sir. Okay. Yes, dear. All right. Others? Yes, sir. कर दिया सर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. Marked, sir. 7. कर लिए सर. Done. Yes, sir. Done, sir. Great. Question number 8. The famous site Auschwitz-Birkenau is situated in Poland. Birkenau, whatever it is. It is known or seen in the news for which among the following reasons? First, it was a concentration camp under Nazi Germany where Jews were persecuted. Elon Musk had posted a picture of his from that site, as X was accused of promoting anti-Semitic posts. It is a world famous site related with Holocaust during World War One. 1 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3, none of the above. And this again is related to current affairs only. The Hindu में ही आया था ये news.
क्वेश्चन नंबर 8, तुम लोग के फोन में पढ़ तुम लोग देते हो ना टेस्ट? मोबाइल से कितने लोग देख रहे हैं? प्लीज रेज हैंड। 1 2 3 4 5। ऑल राइट, तो जिन लोगों ने हाथ उठाया इनमें से लैपटॉप या डेस्कटॉप से कितने लोग अटेंड कर सकते हैं क्लास? 3 people, they can attend from laptop. 2 people. I would always expect you to attend it from a laptop or a desktop also, but स्क्रीन साइज की बात होती है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं अपने आप को एक्चुअली ये वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं ना, में फेस का होना ज़रूरी होता है, तो ठीक है चलो। फॉर योर फिजिबिलिटी लेट मी अनपिन माई सेल्फ, पर तुम लोग को फुल फेस दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Which among the following statement is correct with respect to the outlook of the European Union towards bringing peace in West Asia? Again, direct current affairs applied question. ऐसा क्वेश्चन क्या क्लैट में आता है? डेफिनेटली आता है। 2024 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर लाइक दिस ओनली। Which among the following statement is correct with respect to the outlook of European Union towards bringing West Asia? A. Creation of a Palestinian state and peace agreement with Israel is the possible way out. Gaza Strip must be militarily wiped off to disallow any state actor. Improving the economic conditions of Palestinians in Gaza will mitigate the incidents. The truce between the US and other Arab states is a way out. These statements, which statement is correct? A. Creation of a Palestinian state, agreement with Israel, Gaza Strip wiped out to disallow any non-state actor, improving the economic conditions of Palestinians in Gaza, and the truce between US and other Arab states is the कर लिया? मार्क कर लिया 9th वाला? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. 10th. Which among the following corporates have called off their $10 billion merger with Z Entertainment India? Warner Bros, Z Entertainment Incorporation Japan, Oliver Max Entertainment, National Company Law Tribunal. Which among the following corporates have called off their 10 billion merger with Z Entertainment India? Yes, Shoa? सर अगर आप अपने आप को पिन करेंगे तो हमें नहीं दिखेगा, वो सिर्फ आपको दिखेगा कि आप पिन हैं। Thank you so. Okay, helps a lot. और भैया अगर हॉरिजॉन्टल करके मोबाइल में देखेंगे तो बड़ा दिखता है। Thank you so. क्वेश्चन नंबर, थैंक यू पीपल। आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ ट्रिक है, सबको सब पकड़ में आ गई क्या वो ट्रिक? ओके ओके, देयर इज सम ट्रिक। 2 people have got it, I think. Nice. Question number 11. The Supreme Court in its order recently has called Kheda flogging incident to be a police atrocity. Which among the following judgments of the Supreme Court of India is related to the guidelines against police abuse and custodial violence? Okay, it is asking about the judgment of the Supreme Court related to custodial violence and police abuse. Guidelines दी थी उसने। डी.के. बासु जजमेंट, एस.आर. बोमाई जजमेंट, केशव नंदा भारती जजमेंट, मानेका गांधी जजमेंट। फ्लैट में क्या जजमेंट्स आते हैं? आ सकते हैं, बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर न्यूज़पेपर में हेडिंग की तरह आ रहा है तो फ्लैट में भी आपसे जीके में पूछ। क्वेश्चंस लीगल में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जनरल नॉलेज में आ सकते हैं, बिकॉज जो जजमेंट्स हैं ये सारे सारे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स की पढ़ाई जो होती है वो इंडियन पॉलिटी में होती है। जब आप पॉलिटिकल उसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाता है। The arrival of which among the following Chinese research vessels towards Maldives has been ruled out by the government in, मतलब क्वेश्चन यही है, गवर्नमेंट इन मालदीव्स ने रूल आउट कर दिया था कि वेसल नहीं, चाइनीज वेसल का नाम पूछ रहा है। यांग यांग होंग 3, प्लीज यू लॉन्ग, पी यांग होंग 2 के above। कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 12? जी भैया हो गया। Question number 13. Who among the following Supreme Court judge has authored the judgment calling the remission policy of Gujarat government to? Among the following Supreme Court judge has authored the judgment calling the remission policy of Gujarat government to be illegal?
DY Chandrachud, BV Nagaratna, BR Gavai, Ujjal Bhuyan. So it was a two-judge bench. It was a division bench. There were two judges. Remission policy of Gujarat was called illegal. Heralded that judgment. There's a great intervention by the Supreme Court. The trust in the judiciary, the trust in the constitution still persists because तब तक Supreme Court है तब तक you can say totalitarian state नहीं होगा कभी भी. Absolutism कभी नहीं आ पाए. So among the following तो कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 13 भी. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल. Who among the following professors in Harvard University had to submit his or her resignation due to the ongoing protest against the result of affirmative action and issues of plagiarism? Political news from United States of America, contemporary events. Now, why it is important in current affairs and why should we study? We should simply study this because it is talking about affirmative action. Affirmative action is just reservation. In India, we use the word reservation. In America, they don't use the word reservation because they believe that nothing is reserved for anyone. They say that state is taking positive action to uplift people. That is called as affirmative action. Affirmative means positive, positive action. The state, the ruling is taking positive steps towards the citizen, uplift them. Okay, and that is what synonym is reservation. So this news was there. Vivek Ramaswamy, Claudine Gay, Gabriel Attal, and Alan Garber is related to the position of president of Harvard University. 14th कर लिया होगा. 15th पे आते हैं. Which among the following statement is are incorrect with respect to UNRWA as seen in the news? This organization was also there in the news. United Nations related news, United Nations related facts, whatever is in static and whatever is current affairs, always since 2008, it has been considered to be very important for this question. UNRWA, it stands for United Nations Relief and Work Agency. B. USA has suspended its funding to UNRWA with respect to its operation in Palestine. Relations between the Israeli Prime Minister and UNRWA have been strengthening in recent years. Israel has bombarded several hospitals as part of UNRWA as they were delivering terrorists. Among the following statements are incorrect with respect to earlier. Now this is again from contemporary events and फ्लैट कंसोलिडेट में वो जो सिलेबस टेम्पररी. आपने रिसेंटली वीडियो भी देखी होगी, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही है. अगर आप डिफेंस रिलेटेड मीम्स फॉलो करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि वो इजरायली गार्ड जो है, इजराइल के फोर्सेस पेशेंट बन के व्हील चेयर लेके बंदूक से वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं इनसाइड द हॉस्पिटल, राइट. दैट इज रिलेटेड टू दिस. कर लिया होगा. 15 16 पे पढ़ते हैं. 15 के बाद क्या आता है? 16 आता है ना. हाँ. Which among the following states in USA has recently used nitrogen gas for the first time for execution of convicts? Which among the following states in USA has recently used nitrogen gas for the first time for execution of convicts? फॉर एग्जीक्यूशन को रिप्लेस कर सकते थे टू एग्जीक्यूट कॉन्विक्ट. इस कॉन्विक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लैट के लिए. ये नाम लिख लीजिएगा इसका. न्यूज़पेपर से अगर नहीं लिख, इसको सजा दी थी. नाइट्रोजन गैस यूज कर. अलाबामा, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, फ्लोरिडा. अच्छा यहाँ पे सर ये समझ नहीं आया था, थोड़ा टेस्ट के बाद समझा दीजिएगा ये वाला. क्या नहीं समझ में तो आया? अच्छा, न्यूज़ नाइट्रोजन. नहीं समझ में आई. जी जी. ओके ठीक है, डन, बता देंगे. कर लिया. Okay, great. 17th question. Which among the following best describes the meaning of the maxim volte-face? And this is coming from. Now, come on, we don't have time. A, B, C, D. Mark कर लिया.
A strong face in the politics, sudden change in the position, a high voltage face showing charisma, sudden downfall. वोल्ट फेस मैक्सिम था, न्यूज़ में है, एडिटोरियल में यूज़ हुआ था, 17th के बाद 18th पे बढ़। यस, नी डाउट? सर एक सेकंड ऑप्शन दिखाना फिर से। ठीक है, 18th। Which among the following states in India is witnessing a clash with enforcement officer where the state vigilance and anti-corruption department has booked an officer of ED? This is awareness related question. Tussle between state agencies and union agencies. Why this question? Because Supreme Court में ये मामला चल रहा है. You have to keep an eye. स्टेट वर्सेस सेंटर का डिस्प्यूट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कॉल्ड द न्यू इमिग्रेशन लॉ एज इनह्यूमन? फ्रांस, स्पेन, इजराइल, इटली। बाय दिस न्यूज़ बिकॉज यूनाइटेड नेशंस का अपना रेफ्यूजी से रिलेटेड पूरा का पूरा लॉ है। ठीक है, जो रेफ्यूजी क्राइसिस है वो भी हमेशा में रहती है। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन में माइग्रेशन की वजह से, यूरोपियन यूनियन में माइग्रेशन की वजह से जो मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जहाँ पे सबको वापस भेजेंगे फ्रेंड्स को उनके नेटिव कंट्री। क्वेश्चन नंबर 20, द अराकन आर्मी एज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? अराकन आर्मी रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? या लेबनान, ईरान, म्यांमार। अराकन आर्मी 20th। ठीक है, ये हो जाता है हु पे। ठीक है, और ये कंट्री से रिलेटेड है तो ये वेयर हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, Who among the following has been awarded the Padma Vibhushan, country's second highest civilian award, posthumously? Chiranjeevi, Venkaiah Naidu, Padma Subramaniam, and Ishwar Pathak. Posthumously among the following, and this was again from the Hindu. I had told you what's related. You just write down the basic info. सबके नाम नहीं। ठीक है, चलो 22 पे आते हैं। Justice Prasanna Balachandra has been elevated as the third Dalit judge in the. He has been serving as the Chief Justice of which among the following? A. Karnataka, B. Tamil Nadu, C. Madhya Pradesh, and D. Telangana. Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Telangana. This Prasanna Balachandra has been elevated as a third Dalit judge, serving as. कहाँ से मतलब वो एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट के जज? मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में? जी भैया। क्योंकि पढ़ा हुआ है और पढ़ी हुई चीज़ें दिख रही होंगी आपको। हाँ, नहीं, न्यूज़पेपर्स में अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा दिख रही है सर, दिख रही है। तो आपको आपसे बन रहा होगा ना एक्चुअल। चलो ठीक है, इसीलिए बम फोड़ा अभी। अब स्टेटमेंट बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सिमिलर इन लाइन विद द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट? पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन वी हैव ग्रोन अप विद द फ्लेवर ऑफ, रीड इट। यार स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ए, बी, सी, डी।
सर एक बारी पैसेज दिखा दीजिएगा। ठीक है, कर लिया? Question number 24. The Chief Election Commissioner has recently warned about the negative impacts of deepfakes and AI misuses. National Voters Day is observed on which among the following dates? Very easy question, very direct. कर ही लिया होगा आपने. 24th कर लिया होगा. 25th. Which among the following statement is are incorrect with respect to elections in India? Election Commission of India is the statutory body getting powers under Representation of People Act to conduct elections. Model Code of Conduct issued during the election process is similar to Section 34 Criminal Procedure Code, but is mentioned in the Rajiv Kumar is the 25th Chief Election Commissioner of India. Nothing like voting, I vote for sure is the theme for national vote. 1, 2, and 3 and 4. Now these type of questions are not directly asked in class. It's a very higher order level. But ALET ने ऐसे questions दिए हैं एक point of time करंट अफेयर्स के सेक्शन में. तो मतलब ये क्वेश्चंस के तरीकों को कोई फिक्स तरीका नहीं है कि कैसे तरीके के सवाल. अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 2022 के पेपर में, 22 या 23 के पेपर में, जहाँ पे स्टेटमेंट्स ऐसे 4 दे दिए और बोला 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव. कितने स्टेटमेंट्स ये हैं गलत हैं. फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन ये लोग बहुत तेज़ी से चेंज करते हैं. ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, हमारा एक टॉपिक को रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होता है ना, उसको एक साथ अप्लाई करते हैं. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारा सोचने का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है. ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर्स लिख लिए होंगे. दैट्स इट. 25 क्वेश्चंस हो गए हमारे. ऑलमोस्ट लाइक वी टुक we have taken 30 minutes or 25. Not a bad speed. 32 minutes हुए. Not a bad speed given the kind of questions we. ठीक है, right. चलिए, everybody ready for answers? Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो बी ही है, अरविंद पनागरिया, एंड दैट इज क्लियर. एनके सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के थे, आउटगोइंग हैं. इस स्टेटमेंट की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इस स्टेटमेंट में सी और डी में डाउट था इस क्वेश्चन में. ठीक है, देखिए, द स्टेट्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इनकम टैक्स शुड बी गिवन मोर शेयर इन टैक्स इवन इफ इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. क्वेश्चन नंबर डी इज पहला पार्ट जो है स्टेटमेंट का वो तो पैसेज में दिया हुआ है, बट सेकंड पार्ट पैसेज में नहीं दिया हुआ है. डी रूल आउट हो जाता है और आंसर है हमारा. सीधी बात है, द स्टेट्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इन द इनकम टैक्स आर डिमांडिंग हायर पे. ये तो सिचुएशन दी हुई है पैसेज में, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई इफ द इनकम इज़ फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग स्टेट और सम अदर स्टेट इज़ द कंसर्न दैट इज मैंशनड इन द पैसेज. और यही होता है एक तरीके से इन्फर करना, फ्रेंड्स निकालना. जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या यूज़ हुआ है, द ओरिजिन ऑफ इनकम इज एसेंशियल टू एस्टिमेट स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इनकम टैक्स रेवेन्यू विच इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई. अगेन ये वाला लॉजिक लगा के ही हुआ. जिनको भी डी लोगों ने मार्क किया उनको समझ. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, इसमें क्या आंसर था, बी. यस, 3 का बी इज करेक्ट. मदिगा कम्युनिटी नॉट महाराष्ट्र, इट्स इन तेलंगाना. और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, तो बी है इसका करेक्ट आंसर. 4th, इसमें बोथ ए एंड बी है, 4th का सी है करेक्ट. ठीक है, चेक कर लीजिएगा, अपना टिक कर लीजिए. 5th क्वेश्चन पे आ जाएं. तो 5th क्वेश्चन में जो सही स्टेटमेंट है
दैट इज भैया फोर्थ का क्या था फोर्थ का आंसर सी है, और सेकंड का? सेकंड का आंसर सी है, ओके। फिफ्थ बी, फिफ्थ का आंसर बी है, ठीक है। सिक्स्थ ओरोटोन एंड द आंसर इज, बिकॉज इसमें आपको सीधे एंटोनिम बताना था ओरोटोन का, द आंसर इज हम्बल, ठीक है। ये सभी देखिए थोड़ा सा किसी भी चीज़ को, साउंड को बहुत तेज बनाने वाली, सोनोरस, बॉम्बास्टिक, दिखावा बहुत ज़्यादा करने वाला, टर्जिट मतलब समबडी हु इज़ वेरी प्रोफाउंड एंड नोन एंड वेरी रिजिड, ठस, ठीक है, सब जगह यूज़ होता है टर्जिट। तो ये सब किसी चीज़ को बढ़ाने वाले हैं। हम्बल जो होता है यूजली कहते हैं हम्बल बिलोंगिंग से आ रहे हैं, गरीब घर से आ रहे हैं, वो नीचे वाला वर्ड है, तो ऐसे कर सकते थे। सेवेंथ ए, बाल्टिक सी। एट्थ, एट्थ का जो आंसर है दैट इज 1 and 2 बी, ठीक है। एट्थ का आंसर इज 1 and 2 बी। नाइन्थ का आंसर ए, नाइन्थ इज ए, क्रिएशन ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट एंड पीस एग्रीमेंट विद इजराइल इज द पॉसिबल वे आउट, ठीक है। जोसेफ बिरोल के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आए थे। नाइन्थ हो गया। टेंथ, विच अमंग द फॉलोइंग कॉर्पोरेट्स, टेंथ का आंसर सी है, टेंथ का आंसर सी है, ठीक है, कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट। इलेवेंथ, दिस इज डी के बासु जजमेंट, इलेवेंथ ए, डी के बासु जजमेंट, डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़, इसका भी आंसर ए है, जियांग यांग होंग 3, ट्वेल्थ का ए, ट्वेल्थ का ए, ठीक है। थर्टींथ, बी वी नागरत्ना, ऑथर ऑफ द जजमेंट इज बी वी नागरत्ना, रेमिशन पॉलिसी ऑफ गुजरात पे, बी वी नागरत्ना, ठीक है, थर्टींथ का बी। फोर्टींथ, क्लॉडिन गे, क्लॉडिन गे, फोर्टींथ का बी। एलन गार्बर क्लॉडिन गे की जगह पे आए हैं, आई हैं इस समय, ठीक है। क्लॉडिन गे इज द आंसर, क्लॉडिन गे बी। 15th, which among the following statements are incorrect with respect to UNRWA, इनकरेक्ट बताना था आपको, और इसका आंसर है सी, 15 का आंसर है सी, ठीक है। 16th, अलाबामा, 16th इज सी, ए, अलाबामा, ठीक। 17th इज बी, 17th इज बी, अ सडन चेंज इन द पोजीशन, नीतीश कुमार के पलटे पे ये स्टेटमेंट आया था, वोल्ट फेस, ठीक है, सडन चेंज इन द पोजीशन। 18th, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ए, 18th का आंसर ए, तमिलनाडु में हुआ है ये बवाल। 19th, फ्रांस ए, 19th फ्रांस ए। 20th, डी, म्यांमार, अराकन आर्मी इज विथ म्यांमार। 21, बिंदेश्वर पाठक, 21 बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। 22, कर्नाटका, कर्नाटका, 22 का ए। 23, 23, बी, 23 बी, राइट। एनीबडी 23 जिसका गलत हुआ है, प्लीज रेज हैंड। दो लोगों का गलत हुआ है, तीन, और बस, कम ऑन, किसका गलत हुआ है जल्दी बताओ, चैट चैट पे हैंड रेज करो अपना, बाकी सबका सही हुआ है, जी सर। 3 लोगों का गलत हुआ है। 23rd, ग्रेट, थैंक यू फॉर दिस ऑनेस्टी, बिकॉज 23rd जिसका गलत हुआ है वो लूप होल है, वो प्लग करना पड़ेगा, क्यों गलत हुआ, ये लीगल से रिलेटेड था, हाँ ये लीगल रिलेटेड है आपका, सॉरी सीआर रिलेटेड था, इसमें आपको डायरेक्टली इन्फर करना था यहाँ। 24th की बात करते हैं अब। 24th तो बहुत ही सिंपल था, 25 जनवरी सी, ठीक है। 25th पे आ जाते हैं। 25th पे इसमें क्या बताना है अपने को, इनकरेक्ट बताना है, कितने गलत हैं, कितने गलत हैं, कौन सा है इसमें ये गलत है, और 1 and 2, 1 and 2 कहाँ है, ऑप्शन में बी, बी है, बाकी ये दोनों सही हैं, ठीक है। 25th में बी। 25th कितनों का क्या हुआ आज था,
सर वो जो क्वेश्चन था where you asked the synonym. इन्होंने पूछा क्या मैंने? हाँ सर. सिनोनिम नहीं है, वो पूछा था आपने। ओके ठीक है. चलो अपने अपने स्कोर निकालो फटाफट। मल्टीप्लाई पहले तो करेक्ट काउंट करिए, जो भी करेक्ट सर है। 25th का आंसर. क्या 25th 25th का का आंसर बता तो दिया, बी 1 and 2। चलिए अपने स्कोर निकालिए। सबसे पहले करेक्ट काउंट करिए कितने हैं, फिर इनकरेक्ट काउंट करिए। अब ऐसे क्वेश्चन में जो करेक्ट मिनिमम करेक्ट होना चाहिए, सर 13th का आंसर. 13th का आंसर। 13th का आंसर क्यों बी। तुमने नहीं लिखा है उस समय? सर वो लग रहा है छूट गया, मतलब चेक नहीं किया सर. तो अब खुद को +1 मत देना। क्या मार्क किया था तुमने? 13th में क्या मार्क किया है? नागरत्ना. हाँ सही है, बी। ओके हो गया। सर यस। सर मुझे क्वेश्चन 5th में थोड़ा डाउट था. डाउट क्या है? सर इसमें मुझे जो स्टेटमेंट से लग रहा था वो 1 2 और 4 था, तो 2 गलत है. वो 1 ऑप्शन में था ही नहीं 1 2 एंड 4. नहीं, 1 2 and 4, 1 2 and 4 तुम्हें थर्ड नहीं सही लग रहा था? सर ये न्यूज़ बट सर ये न्यूज़पेपर में दिया था, इट वाज फर्स्ट इनेक्टेड इन 1976 और फिर 2010 वाला. तो ऑप्शन बी मार्क किया है, सेकंड स्टेटमेंट तो सही है ही, तो हम भी कह रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट हम कह रहे हैं सही है, ये भी दिया हुआ है। फोर्थ स्टेटमेंट हम कह रहे हैं सही है, ये भी न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। सर मतलब गलत पढ़ ली थी मैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत क्या है इसमें? ये वर्ड, इट्स रेगुलेशन एक्ट नॉट रेगुलेटरी। कॉमन सेंस था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, रेगुलेटरी नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट। बाकी सब सही, बाकी ये सब फैक्ट्स हो गए। चलो स्कोर निकाल लिया। 96 किसका आ रहा है सर रैशनलाइज करने के बाद? मेरा आ रहा है 96। मेरा 90 कॉन्स्टेंट वाला गलत हो गया। कितना गलत हो भैया गया? ये माइनस भी हाँ। करना है कि सिर्फ करेक्ट? ठीक है सार्थक, कितने करेक्ट है तुम्हारे? सर जी मेरे करेक्ट हैं 21। ठीक है 21 करेक्ट है। 21 करेक्ट है, 4 इनकरेक्ट हो गए ना। स्कोर कितना आएगा इसमें? 21 में हटा दें 2। सर 2 भी हटाने हैं। अरे हाँ 20 तो मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 से। हाँ 96 आ गया। आ गए भाई, एक के 20 मार्क्स, 21 करेक्ट। कोई और है स्कोर पे? सार्थक इसके पहले तुम कोचिंग कहाँ से कर रहे थे? क्या सर पिछले उसमें कोचिंग नहीं ली थी। कोचिंग लास्ट 2 महीने में ऐसे क्रैश कोर्स ले लिया था किसी का, ऐसे ही 6000 का ऐसे ही बोल रहा था। अबे बाकी सब तो कोचिंग वाले। हाँ सर मैंने नहीं ली थी, मैंने जुलाई में शुरू किया था और नहीं कोचिंग भैया मैंने भी नहीं ली थी कोचिंग। आशीष भी और उसके भी कोर्स वाले सिर्फ सीए देता था मेरे को। हाँ करंट अफेयर्स इज समथिंग, अगेन आप देख रहे होंगे कि जो आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकते हैं। बाकी लोगों का स्कोर, चलो अब अपना चैट पे बताओ मुझे, यहाँ पे अपना एक्चुअल स्कोर 25 के हिसाब से बताइए, रैशनलाइज कर लीजिए। 12 करेक्ट, 13 इनकरेक्ट,
57.6 कैसे आ सकता है? 7.5 होगा, 25 होगा, 75 होगा, 0.6 4 को करना है तो 13 इनकरेक्ट हुए हैं, तो 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12, 2 4 2 8, 3 2 5 कट जाएगा, कितने में से? 12 में 3 गया, तो कितना? 9, 8.7, 8.75 को 4.8 ट्राई करना है। चलो यार 45 है सर। ठीक है, अर्पिता अपना करेक्ट स्कोर ऐसे निकाल लो। आस्था 18.75। ओह थैंक गॉड, ओके ओके, गॉट इट, हाँ मुझे लगा 120 में। ओके, आउट ऑफ 25 आस्था का है 18.75, सब अपना 25 में ही बताओ। मनीषा का भी सेम है, 1 अनअटेम्प्टेड श्योर है, उसका निगेटिव हो जाएगा, 6 गलत हो गए तुम्हारे। ठीक है, संस्कृति 20 करेक्ट, 20 करेक्ट है तुम्हारे, और 4 इनकरेक्ट हैं। अच्छा, 20 करेक्ट हैं तुम्हारे, तो तुम्हारा कितना आएगा? 5 इनकरेक्ट हो गए। हाँ, हो जाएगा ये 18.75 ना। सीधे स्कोर लिखो भाई, परेशान मत करो मेरे को, सीधे स्कोर लिखो। शोभा का भी वही है, कार्तिकेय का भी वही है, अपूर्वा इज एट 21.25। अपूर्वा तुम अपना रैशनलाइज करोगी स्कोर तो कितना आ रहा है? और है 17.5। परफॉर्म सबने अच्छा किया है। सूरज तुम्हारा भी स्कोर 96 है, तुम्हारा स्कोर 20 आ रहा है, 20 मार्क्स। जी भैया। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 से तो ही आएगा 96। हाँ जी भैया, हाँ, 4 गलत थे और 21 हाईएस्ट अपूर्वा का 21 हो गया है, हाईएस्ट अपूर्वा का स्कोर हो गया है 102। ये आ गए टॉप 5 में, पक्के पक्के आ गए 96 वाले। यस, 96 वाले टॉप 5 में थर्ड लिस्ट में हो जाएगा ये, लेकिन ये पक्का हो गया, इसमें अनडिस्प्यूटेड हो गया 102, मिल जाएगा। ठीक है, आशीष इज एट 16.5। अर्पिता और भी है, राघव तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है? राघव एंड रिया, रिया व्हाट इज योर स्कोर? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग का स्कोर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब जज नहीं कर रहे, बट जस्ट फॉर गुड नोट कि कितने मार्क्स पे तुमने एंट्री ली है। सर 17.25। 17.25। हाँ ओके ग्रेट। एंड रिया? नॉट देयर इन द मीटिंग, अच्छा मार्क ही नहीं किया तुमने। आर यू देयर रिया इन द मीटिंग? सर हाँ, सर 12 करेक्ट। 12 करेक्ट हैं। ओके, और कितने गलत हो गए? 8 और 5, 13 गलत हो गए। 8.75 के आसपास आ गया। ठीक है, भावनी इज एट 17.5। I think this is a warning sign for Ashish and this is a warning sign for Bhavni, right? 18.75 को 4.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिलेबस आउट हो गया उसके बाद भी अगर आप नहीं, चलो न्यूज़ देख लेते हैं कहाँ कहाँ से था।
जो तुम्हारा शिप वाला क्वेश्चन था वो इस वाली न्यूज़ से था। चाइनीज रिसर्च वेसल एंटर्स इंडियन वाटर्स टू माले से ट्रैकर्स एंड दैट इज यांग यांग होंग 3 दैट शिप वाज देयर। से आपको शिप का नाम लिखना था बस, बाकी न्यूज़ जो है आप पढ़ के अपना आगे बढ़ना था। द वेसल इज एक्सपेक्टेड टू रन एन ओशन वाला क्वेश्चन के बाद क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दिस। आपका जो टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, टैक्स रिलेटेड स्टेटमेंट दिया था, इस वाले एडिटोरियल से था। टैक्स कंट्रीब्यूशन बाय स्टेट नीड्स टू बी रिविजिटेड and this editorial was there on the occasion of the 16th Finance Commission report. I mean, formation of 16th Finance Commission, where people are expecting that current 41% share of states be enhanced by the 16th Finance Commission, and on the basis on which the share of tax division should be increased is under criticism right now. This was one question. Then idea of one nation, one election. Yes, I was about to pick up one passage from this, but here is related to one nation, one election, and the text and context was also there from the Hindu that I had said for you to read. What are the merits and the demerits of simultaneous election? That from here we have picked up the election commission related questions. Okay. You will also find that there are factual informations. Ramnath Kovind, a high-level committee, has met on 3 occasions, and what is the discussion? I was about to pick up a question from this statement, but मैंने कहा चलो ठीक है. Then Madhika community question was from this text and context on equal access to benefits for all Supreme Court SCs. Okay, that was there in the text and context part. FCRA related question was from this text and context. Why was FCRA registration for several NGOs cancelled? And in this news, every question, see, it is written Foreign Contribution Regulation Act 2000. The 1976 Act was repealed and replaced with a new legislation in 2010. It was further amended in 2020. The license is there valid for 5 years and can be renewed. Registered groups can receive foreign contribution for social, educational, religious, economic, and cultural programs. So this paragraph that is there, where my cursor is moving, this paragraph should come down in your current affairs copy. Why? Because who monitors the process and how the process is monitored is a factual information for FCRA. The rest information, how many have lost registration and all of this, why were CPR and WVI's registration cancelled, just read it. Don't write it anything. This news. Next question. If there was any question, no, about to put a question, but I didn't. Yeah, the Auschwitz situation वाला क्वेश्चन जो था, ऑस्ट्रिच बिरकेनाउ वाला, ये एलॉन मस्क की फोटोग्राफ आई है कि उस एरिया से पोलैंड में है जहाँ पे होलोकॉस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ है, इससे रिलेटेड ये फोटोग्राफ थी। बेन शापरो और ये सब मौजूद। यहाँ पे आपको बाल्टिक सी पोर्ट है, हेडिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे उस्तुलुगा पोर्ट है, वो रशिया का एक शिप है, वो अटैक हुआ। अच्छा, रशिया यूक्रेन में एक न्यूज़ और भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे अभी एक प्लेन को उड़ा दिया है उन लोगों ने। some news was there बहुत 65 यूक्रेनियन सोल्जर्स या उसमें मारे गए हैं। Right. तो वो कौन सा टाउन है, वो टाउन को हमेशा दिमाग में रखिएगा, वो टाउन देखिएगा, उसको लिखिएगा उसमें वो टाउन कौन। उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन था वो इस न्यूज़ से था, स्टेटहुड फॉर पैलेस्टीन द ओनली क्रेडिबल वे फॉर पीस इन वेस्ट एशिया। मैक्सिमम मैंने कोशिश जानबूझ के 23rd पे फोकस किया बिकॉज आई वांटेड पीपल टू स्कोर। तो मुझे पता था कि एटलीस्ट आपने 23rd का पेपर तो शिद्दत से पढ़ा होगा, और इसीलिए मैंने सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं इसी के अराउंड बिल्ड किए थे। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते थे। फर्स्ट मोबाइल हॉस्पिटल दैट इज़ प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री, ये भीष्म क्यों, इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते थे। आई थिंक सबने इस न्यूज़ पे ध्यान दिया होगा। जी भैया, सबने न्यूज़ पे ध्यान दिया होगा, सबने सोचा Yes, भी sir. होगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है, बट क्योंकि मैंने क्लास में इस पे एम्फेसिस ऑलरेडी डाल दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं दिया। क्लास में मैंने आपको बताया था कि पूछ सकते। चलिए 24 के पेपर पे आते हैं, लेट्स कम टू। और उसमें खेड़ा फ्लॉगिंग, ये फ्रंट से न्यूज़ थी, खेड़ा फ्लॉगिंग इंसिडेंट वाला
डी के बासु जजमेंट, यहाँ पे दिया हुआ है डी के बासु जजमेंट, सिर्फ आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो भी आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो था वो मालदीव्स रूल्स आउट वाला वेसल वाला, वो भी यहाँ से ही है। 23rd और 24th में दोनों न्यूज़ रिपीट हुई है। उसके बाद तो आई वॉज अबाउट टू गिव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, बट अभी क्या है, नॉमिनेशंस की बात है 96 अकेडमी अवार्ड्स में, तो नॉमिनेशंस कहीं से नहीं पूछते हैं। दैट इज़ वाई इस न्यूज़ पे हम नज़र रखेंगे। यहाँ से स्टॉप से पूछने वाले थे आपसे क्वेश्चन, क्योंकि क्लास में डिस्कस किया था तो नहीं पूछा, बिकॉज आई वांटेड यू ऑल टू रीड। लेट मी सी। हाँ, ये वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इज़ राइट टू स्टैब्लिश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन स्टैट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, पे नज़र बना के रखिएगा। ये वाली न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख टेरिटोरियल कंट्रोल शुड बी टिल जिलजित बाल्तिस्तान। लद्दाख में से डिमांड आने लग गई, ठीक है। 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, तो ऐसी नज़र बना के। ऑलराइट, लेट मी गो टू, ये वाला न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड सेपी नेटवर्क टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन ग्लोबली। वेरी इंपॉर्टेंट। कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, सेपी का फुल फॉर्म। क्या कर रहे हैं, WHO से इनको परमिशन मिली है, क्या टारगेट है, फैक्ट्स में चला जाएगा। वैभव फेलोशिप किसको देते हैं, टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिसर्च सिनर्जी। ये वाली न्यूज़ को भी आप करंट अफेयर्स की कॉपी में उतारेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पढ़ा होगा आपने ये भी लगा होगा कि ये भी न्यूज़ पूछ सकते हैं। नई न्यूज़ किस किस ध्यान नहीं गया था आप लोगों का, ऐसी न्यूज़ को हमेशा लेके चलेंगे, ठीक है। 25th पे आ जा रहे हैं, जी भैया। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया है बढ़िया है। हाँ, वो जो सिटी के बारे में बात कर रहे थे, उसका न्यूज़ यहाँ पे है। पोल्ट्रोगॉड करके, बेलगोरॉड, बेलगोरॉड सिटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टेलीकॉम एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देने वाला था मैं, कैन बहुत ही डायरेक्ट हो जाता। देन दी नेक्स्ट, हाँ, नेशनल वोटर्स डे पे जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ से थे, 25 जनवरी। और उसके बाद बाकी स्टैटिक नॉलेज और कॉमन सेंस को लगा के क्वेश्चन को। इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन किसी का गलत हुआ है क्या? 25th क्वेश्चन किसका गलत हुआ है? 25th क्वेश्चन किसका गलत हुआ है? प्लीज रेज हैंड। एक, दो, दो गलत हुआ है, 3 लोगों का गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए इतना, बस 3 लोगों का गलत हुआ है 25th, बाकी सबका सही हुआ है। 4 लोगों का गलत हुआ है, गुड। बताइए किस तरह के क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं आप लोग का वीक पॉइंट समझ में, ठीक है। 25th भी एप्लीकेशन अप्लाइड था, इसलिए ये भी गलत हुआ हो। हाँ, ये भारत रत्न वाली जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न जिनको मिला है, ठीक है, कर्पूर कर्पूर जी ठाकुर जी का नाम आगे रखेंगे। ये सारे ऑब्वियस न्यूज़ अवॉइड करी है मैंने। और हाँ, तो आपको जो स्टेट वर्सेस सेंटर वाला जो टसल था ईडी वाला, दैट इज़ फ्रॉम दिस जस्टिस
के.वी. विश्वनाथन का जो भी है, वी शुड एक्सप्लोर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म और अ बॉडी विच विल लुक इनटू द इंटरस्टेट ramifications. Now this news was from this heading: Supreme Court seeks method to check the ED state tussle. यहाँ से एक आर्टिकल था. हाँ, फ्रेंच काउंसिल वाला जो क्वेश्चन था, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल वाला, वो यहाँ से था. फ्रेंच कोर्ट रिजेक्ट सेवरल पोर्शंस ऑफ न्यू इमिग्रेशन लॉ. दैट वाज फ्रॉम दिस न्यूज़. देन अराकन आर्मी वाला जो न्यूज़ था, अराकन आर्मी इज रिलेटेड टू विच कंट्री? दैट इज़ फ्रॉम म्यांमार. Ethnic minority fighters claim to have seized port town, and the name of the port town is Pokto. Pokto. That name is important. हाँ, अब ये वाली न्यूज़ है UNRWA से रिलेटेड. विल फाइंड इजरायली स्ट्राइक्स एरियाज अराउंड 2 हॉस्पिटल्स इन साउथ कास्ट. ठीक है. इसके बाद क्या है? इसके बाद वाले पेपर में न्यूज़ आई थी. मिनट, लेट मी हैव अ रन. हाँ, पद्म विभूषण वाली जो न्यूज़ है, विल फाइंड यर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, एक्टर्स चिरंजीवी and Vijayanthimali Bali and Bharatnatyam dancer Padma Subramaniam will be conferred the Padma Vibhushan. Bindeshwar Pathak, founder of Sulabh International, will be conferred the award posthumously. So that news, that question was from this. Yes, Justice Prasanna Balachandran news, sworn in as a Supreme Court judge. He is the third Dalit judge after Justice B.R. Gavai and C.T. Ravi Kumar. Upon the retirement of Justice Sanjay Kishan Kaul, right? And he has been serving as the Chief Justice of Karnataka High Court from this news, right? Coming to the 27th day. Alabama in the US, nitrogen gas in first of its kind execution. यहाँ से ये क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का यूज़ अच्छा क्या है, कॉन्सेप्ट है वो समझ. जो डेथ पेनाल्टी होती है, पहली बात तो वही कोशिश करते हैं कि ना दी जाए. ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट में किसी की जान लेना का अधिकार किसी को भी नहीं, इवन स्टेट को भी नहीं. तो डेथ पेनाल्टी हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वाली डॉक्ट्रिन निकाली. ऐसी फिलॉसफी है जो सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता है. डॉक्ट्रिन्स आर द फिलॉसफीज सुप्रीम कोर्ट फॉलो. पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन का होता है डेथ पेनाल्टी. एक यूनिक केस होगा जहाँ पे लग रहा है कि डेथ पेनाल्टी इज द ओनली सोल्यूशन. आज के ही न्यूज़ में है कि केरला में, आई गेस केरला में जेपी के किसी कार्य सेक्रेटरी के पोस्ट का मर्डर हुआ था 2020. कोर्ट ने, हाई कोर्ट में, हाँ केरला की ट्रायल कोर्ट ने 14 अक्यूज पीपल को डेथ पेनल्टी. दे ऑल आर रिलेटेड टू पॉपुलर फ्रंट लैंड ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड कॉन्सेप्ट जो डेथ पेनल्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेथ पेनल्टी को पेनलेस करने की. नाइट्रोजन गैस का यूज़ जो है अमेरिका में इसलिए आया तो पेनलेस डेथ देना चाहता. अब पेनलेस डेथ क्या होता है? पेनलेस के साथ साथ डेथ मस्ट बी सडन एंड क्विक. आदमी तड़पता रहे, फड़फड़ाता रहे, ऐसी मौत नहीं देते. तो यहाँ पे जो अलाबामा में जब नाइट्रोजन को यूज़ किया गया तो उसमें क्या देखा गया कि वो व्यक्ति बहुत देर तक सफोकेट कर रहा था बहुत. तो दो इट वाज अ पेनलेस डेथ, बट में नो उसको परेशानी ज़्यादा हुई मरने. तो दिस इज़ ऑल्सो अवॉइडेड. आजकल ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट में इसके अवॉइड करते हैं. मारना है, फटाक से मार दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, लेकिन मारने का तरीका भी जस्ट एंड ह्यूमेन होना चाहिए, राइट? सो दिस वॉज द न्यूज़.
एंड उससे रिलेटेड आपको फैक्ट क्या थे? तो केनेथ यूजीन स्मिथ उसका नाम है, 58, वॉज प्रोनाउंस्ड डेड at 8:25 p.m. in, at an Alabama prison after breathing the gas through a face mask to cause oxygen deprivation. It marked the first time a new execution method was used in the US since 1982, when lethal injection was introduced and later became the most common method. इंजेक्शन दे के मारते थे, फांसी वांसी नहीं देते हमारे, लेकिन वो इंजेक्शन क्या है, बैन हो गई है, इंजेक्शन पे रोक लग गई है। तो अब दूसरा तरीका है, तो नाइट्रोजन गैस पास उगा के ऑक्सीजन डिप्राइव कर देंगे, तो आदमी मर जाएगा कोई। तो जो डॉक्टर्स ने प्रपोज किया था, राइट, देखो यहाँ पे लिखा है, सम डॉक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैड एक्सप्रेस्ड अलार्म अबाउट द मेथड एंड स्मिथ्स अटॉर्नीज आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट टू हॉल्ट द एग्जीक्यूशन टू रिव्यू claims that it violates the constitutional ban on cruel and unusual punishment and deserved more legal scrutiny before it was used. तो स्मिथ के अटॉर्नीज ने सुप्रीम कोर्ट में रोकने की कोशिश करी थी ना नाइट्रोजन गैस के यूज, इस ग्राउंड पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन लगाया है क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट पे, और इसको अलाउ करेंगे तो कोर्ट थोड़ा सोच समझ के करे। द यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस has expressed regret over the execution. The 27 nation EU and the Geneva based UN Rights Office say the death penalty violates the right to life and does not deter crime. अलाबामा ने 2022 में भी इसको, अलाबामा स्टेट ने इसको फांसी देने की कोशिश की थी, मारने की कोशिश की थी, बट द लीथल इंजेक्शन वॉज कॉल्ड ऑफ एट द लास्ट मिनट बिकॉज अथॉरिटीज कुड नॉट कनेक्ट एन इंट्रा आईवी लाइन, मतलब इंट्रावेनस लाइन, उसकी नसों में नहीं डाल पाए, इंजेक्शन को लगा नहीं पाए। तो इंजेक्शन 2022 में अचानक से उसके एग्जीक्यूशन को रोकना पड़ा। तब तक सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई होगी वहाँ के। द फेडरल कोर्ट रिजेक्टेड स्मिथ्स बिड. The execution came after a last-minute legal battle in which his attorneys contended the state was making him the test subject for an experimental execution method that could violate the constitutional ban on cruelty. यहाँ पे जो स्मिथ के वकील थे तुरंत गए कोर्ट में और उन्होंने कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करी, नाइट्रोजन गैस को यूज़ कर रहे हो इस तरीके से नहीं, 2020 में लीथल इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हो आप, हमें एक एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल की तरह यूज़ कर रहे हो, राइट। Federal court ने rejected the Smith's bid to block it, with the latest ruling coming on Thursday night from the US Supreme Court. The state had predicted the nitrogen gas would cause unconsciousness within seconds and death within minutes. State को ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. Smith's spiritual advisor, Reverend Father Jeff Hood, said the execution did not match the state attorney general's prediction in court filings that Smith would lose consciousness in seconds followed by death within minutes. हुआ नहीं. We didn't see somebody go unconscious in 30 seconds. 30 सेकंड तक वो बेहोश नहीं हुआ. What we saw was minutes of someone struggling for their life, said Mr. Hood, attended the execution. America is going to face a very heavy backlash for the usage of nitrogen gas to punish someone. So the news was there. Again, this news ये भी important था, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दे सकते थे. ठीक है, केन्या कोर्ट रूल्स सेंडिंग पुलिस टू हैती इज इलीगल. अपनी पुलिस को यूएन बैक्ड मिशन में हैती में ज़बरदस्ती भेज दिया बिना परमिशन, राइट. तो द रूलिंग थ्रोज इनटू डाउट द फ्यूचर ऑफ अ मल्टीनेशनल फोर्स लॉन्ग सॉट बाय हैतीज गवर्नमेंट. हैती की जो सरकार है, यूनाइटेड नेशंस का जो मिशन है वो मांग रही है अपनी सिक्योरिटी में. 5,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं. तो इट्स अ इंटरनेशनल ह्यूमन क्राइसिस गोइंग ऑन इन अफ्रीकन रीजन. तो प्लीज़ कीप अ टैब ऑन दिस न्यूज़. बिल्किस बानो वाला जो केस, जो क्वेश्चन था वो यहाँ से था. बिल्किस बानो वाला क्वेश्चन, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रिजन्स, जस्टिस बीवी नागरत्ना हु ऑथर्ड द जजमेंट. ये एडिटोरियल्स में एक फैक्ट था, वहाँ से बिल्किस बानो वाला क्वेश्चन था. और नीतीश कुमार का वोल्ट फेस वाला क्वेश्चन यहाँ से था. बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इज ऑल सेट टू मेक द नेक्स्ट वोल्ट फेस, टाइम टू रिटर्न. वो क्वेश्चन
लेसन्स फ्रॉम अ हाई प्रोफाइल हार्वर्ड एग्जिट, जो अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लॉडीन गे का रेजिग्नेशन है, वो वाला इस वाले एडिटोरियल से था 20। मैं 28 से भी क्वेश्चन देने वाला था, बट फिर मैंने कहा कि 28 to 31 को क्या करते हैं, भी उसको रहने देते हैं। बट एक पर्पस समझाने का जो लॉजिक है, जो इंटेंट था पर्पस बताने का, जब आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ें, पेपर्स को इतनी ऑब्जेक्टिविटी और इतनी ही क्लैरिटी के साथ पढ़ें जितनी क्लैरिटी के साथ आपने इस टेस्ट के लिए पढ़ा है। अब हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लगा हो, कि हो सकता है आपने 2 दिन में 4 दिन का न्यूज़पेपर, बेटर है आप अवॉइड करिए। मैं आपको एक चीज़ साफ बता देता हूँ, टॉपर्स को ज़रा देखो क्लाट के, जो टॉप देखो, तुम लोग अब जो तैयारी कर रहे हो ना, तुम के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, अब तुम लोग को हिट करना है टॉप 3 में पहुँचने के लिए अपने बिहेवियर्स और अपनी हैबिट्स को वैसे ही बना। टॉपर्स को देखिए, सबको चश्मा लगा रहता है, तो आपको हंसी आएगी मेरी बात सुन के, आप ये एनालॉजी थोड़ी सी गलत समझो, और एग्जैक्टली ये रैशनल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऑब्जर्व किया है, सबको चश्मा लगा रहता है, जितने भी टॉपर्स अभी पिछले 4 साल से 1 to 1 रैंक पे, जो क्यों है ऐसा, कि ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये स्टूडेंट्स कोई कोचिंग वोचिंग बनाती नहीं, बच्चे पहले से ही रीडिंग कर रहे होते हैं। अब तुमने पीसीएम को वाले स्टूडेंट को कभी टॉप करते सुना? कैटेगरी का पी स्टूडेंट क्लाट में रैंक 1 लेके आया है, तो वो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले ही बच्चे हैं, लेकिन उनमें एक एट्रीब्यूट है, वो बचपन से रीडिंग कर रहे हैं। तुम लोग को ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है रीडिंग, तुम लोग को ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है रीडिंग। टॉप 3 में जाने के लिए आपका एट्रीब्यूट वैसा ही। न्यूज़पेपर में कोई रश मत करिए, न्यूज़पेपर 1 घंटा 2 घंटा, जब तक न्यूज़पेपर का सब कुछ नहीं आ रहा है, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और भी चीज़ें पढ़नी रहती हैं, और भी चीज़ें से बात करनी है, ठीक है? क्योंकि न्यूज़पेपर ही एक तरीका है तो पढ़ाई में मन लगा रहेगा। न्यूज़पेपर ही एक तरीका है जो इस एग्ज़ाम बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। न्यूज़पेपर ही एक तरीका है जो आपको कॉन्टेम्प्रेरी चीज़ों से अवेयर रखेगा और आपकी प्रिपरेशन में गैप्स को प्लग करे। स्टैटिक फ्लैट में बहुत आता नहीं है, लॉ कितना भी पढ़ लो, फ्लैट कुछ ना कुछ ऐसा देगा। तो इस बार का लीगल का पेपर देख लीजिए आप, इस बार का लीगल का पेपर कौन सा आप लीगल नॉलेज लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, करंट अफेयर से रिलेटेड इन्फ्रेंस। फिर न्यूज़पेपर ही वो तरीका है जो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग को और इंग्लिश एप्टीट्यूड को बढ़ाए। आपको देना किसी भी चीज़ से, जब आपको आउटकम चाहिए तो इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप क्या दे सकते हो, न्यूज़पेपर से भागो मत। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, न्यूज़पेपर को करने का कोई भी नहीं। किसी भी टॉपर ने अभी तक ये नहीं कहा है कि उसने न्यूज़पेपर के बिना इस एग्ज़ाम, मॉक्स एक हद तक रोल प्ले करते हैं। का आउटकम तुमने देखा है इस बार कि आपको 80s तक पुश किया, 70s तक पुश किया, मॉक्स ये रोल प्ले करते हैं। लेकिन जिसके अंदर टेम्परामेंट ही नहीं बना है पढ़ने का, समझ, वो कितने भी मॉक्स फोड़ ले। इस बार तुमने 40 लगाए थे, इस बार तुम 100 मॉक लगा दो, नहीं पहुंच पाओगे। तो जो टेम्परामेंट है ये है हमारे अंदर, तो हम बिल्ड कर लेंगे। गेटिंग मी? वो टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट को वही लोग चाहिए। 90 के ऊपर जितने लोगों के भी मार्क्स, स्टूडेंट्स इनको वो सभी बहुत ही, सब सिर्फ मॉक लगा लगा के टॉप 3 नहीं मिलेगा, ये भी पॉइंट है। तो जिस तरीके से आपने इस टेस्ट के लिए न्यूज़पेपर्स को अप्रोच किया है, एवरीडे अपने न्यूज़पेपर से अप्रोच, राइट, उतनी ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ और एंथुजियाज्म के साथ कंसिस्टेंटली हमारे वीकली टेस्ट इसी तरीके से फ्रेम्ड होंगे। वाले टेस्ट में क्लासेज भी, आगे भी आपको टेस्ट 25 को मार्क्स के तरीके से देखने को मिलेंगे। हर वीक में हम एक ऐसा छोटा मोटा टेस्ट करेंगे, राइट, और अपने ऑब्जेक्टिविटी को कंप्लीट, ठीक है। बस कॉशन किनको देना है, कॉशन उन लोगों को देना है जिनके मार्क्स 96 से कम आए हैं। आप बहुत रेस में बहुत पीछे हो, कि अगर तुम्हारी इसी क्लास में अगर एक बंदा, 2 लोग 96 ला रहे हैं, एक बंदा 96 के ऊपर है, तो 3 हो गए ना,
तुम 15 स्टूडेंट्स में से 3 लोगों के ये स्कोर हैं, 2500 सीट्स को रैशनलाइज कर लो, 2500 सीट्स को रैशनलाइज कर, AIR 2500 के नीचे किसी को NLU नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक 2500 के नीचे कुछ भी आया, 2600 आई, 2700, 2800, NLU नहीं मिलने का, बहुत डिफिकल्ट। आपको 2500 के अंदर होना है, और अब टारगेट है 700 600 के अंदर होने का। अब जो टारगेट प्लान है हमारा 700 और 600 के अंदर होने, तो लगना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर, घंटे गिन के नहीं हो पाए। अभी से शुरुआत कर दोगे डेफिनेटली वहाँ तक। जो लोग अभी बोर्ड्स में उलझे हुए हैं, जल्दी निकलिए इस चीज़ से, न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट। मुझे अच्छा लगा, लेकिन बस क्लोज लूप सिलेबस में, क्लोज लूप सिलेबस में भी क्यों नहीं 25 आउट ऑफ 25, ये प्रॉब्लम है। इतना बंद सिलेबस है, बंधा हुआ सिलेबस है, के बाद भी 25 आउट ऑफ 25। जब तक 25 आउट ऑफ 25, 30 आउट ऑफ 30 नहीं आ रहा है, मान के चलिएगा हम प्रिपेयर्ड नहीं है। क्योंकि तुम समझो, ये क्वेश्चन पेपर 25 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही प्रिडिक्टेबल नेचर के थे, बहुत ही प्रिडिक्टेबल नेचर के, फ्लैट अनप्रिडिक्टेबल नेचर। प्रिडिक्टेबल नेचर के क्वेश्चंस में तो 100% स्कोर, यही हमारा टारगेट, यही हमारा टारगेट। जब आपको बांध रहे हैं सिलेबस से, एक एक चीज़ पढ़िए। और एक एप्टीट्यूड मैं आपको बताता हूँ, सबके पास लैपटॉप तो होगा ही होगा, एक्सेस टू कंप्यूटर तो होगा ही होगा, नहीं तो मोबाइल तो है ही। किसी भी चीज़ को गूगल करके उसके बारे में रीड करने, पढ़ने का हैबिट बनाओ। जितने भी लोग अगर न्यूज़ को वीडियोस से या वीडियो लेक्चर से के ये सब कवर कर रहे हैं, बहुत गलत अप्रोच है ये, बहुत गलत जा रहे हो, कोई हेल्प नहीं होने। खुद से किसी भी जगह से टॉपिक को लेके उसको खुद ही से रीड करने की हैबिट बनाई, रिसर्च करने की हैबिट बनाई। जैसे आपने देखा नेशनल वोटर्स डे, तुरंत आपको न्यूज़पेपर में दिखाई दिया, उसको तुरंत गूगल करिए, नेशनल वोटर्स डे थीम क्या है इस बार, नेशनल वोटर्स डे हिस्ट्री, नेशनल वोटर्स डे। फिर उसके बाद आपने देखा किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, हाउ इट इज़ डन, रीड आर्टिकल्स अराउंड, रीड। द हिंदू कवर कर लिया, न्यूज़ पता चल गई, अब उस न्यूज़ को उठा के गूगल किया, सिंपल गूगल पे डाला, और अदर न्यूज़पेपर वेबसाइट्स से रीड किया। कुछ भी लिखने का एज सच तुमको रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी लिखने का नहीं है, लेकिन द हैबिट टू रीड मोर एंड मोर, रिसर्च मोर एंड मोर विल प्ले अ ह्यूज रोल, यू विल डेवलप दिस हैबिट, विल प्ले अ ह्यूज रोल इन क्लैट एग्जामिनेशन। कि आपको नहीं पता है, आप सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली 6-6 घंटा रीडिंग टाइम दे रहे हो, तो 2 घंटा आपको पैनिक नहीं हो। यू हैव टू रीड 6 आवर्स का रीडिंग टाइम होना चाहिए, रीडिंग टाइम 6 घंटे। बस इस पेपर में जो रिक्वायरमेंट है वही करेंगे, फालतू का ज्ञान लेने की कोशिश मत। नथिंग इज़ गोइंग टू हेल्प। कोई नॉलेज हेल्प करा क्या यहाँ पे, नहीं ना, पेपर ही हेल्प करे ना। और जब न्यूज़पेपर से तुमको दिखाई दे रहा है कि हर तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, पेपर ही अप्रोच रखें। मास्टर सिलेबस, कह सकते हो मास्टर रूल बुक होता है। बाकी देखो, सेट पैटर्न पे चल रहे हैं जो लोग, अगर उनसे कंपेयर करोगे तो बहुत अलग तरीका है मेरा पढ़ना, और पढ़ने का तो वैसे भी अलग है और पढ़ाने का भी बहुत अलग। इस क्लैट एग्जामिनेशन को भी अप्रोच करने का तरीका भी बहुत अलग है, थोड़ा बड़ा ही अजीब अलग सा तरीका, कि हम अखबार को ही पढ़ाएंगे, अखबार पे ही नज़र रखेंगे। हफ्ते में 1 क्लास 2 क्लास होती है करंट अफेयर के, आपको तरीके बता दिए हैं, राइट, वैसे अपन करते। करंट अफेयर्स हमारा फोकस नहीं है, तो मैं करंट अफेयर्स की फैकल्टी था, करंट अफेयर्स मेरा फोकस नहीं, होलिस्टिक अप्रोच। फॉर एग्जांपल जैसे इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी, तो आपको इमिग्रेशन के डायनेमिक्स, यूरोप में क्या प्रॉब्लम है, राइट। फिर आपसे कोई पूछे ये जेनोसाइड कन्वेंशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यू नो इट। फिर कोई पूछे कि अच्छा ये ड्रोन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन, तुम बोलोगे कि हाँ ये PM ड्रोन दी थी किसकी, लाइजर छिड़क। ऑल ऑफ दिस, सूर्योदय योजना कोई पूछ पता है कि अच्छा सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्या डायनेमिक्स, सारा कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को पेपर सॉल्व करने, नो, पढ़ा पढ़ाया जिसको कहते हैं कि पढ़ा हुआ आया है, पढ़ा हुआ है। फ्लैट के इस बार के GK में तो ये हुआ ही हमारे साथ, पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन। पेपर देने के बाद सबको क्या याद आ रहा है, इसराइल पैलेस्टीन पूछा सर, इसराइल पैलेस्टीन, एवरीबॉडी वाज लाइक इसराइल पैलेस्टीन, राइट।
वो पढ़ा पढ़ाया टॉपिक, बाकी सारे टॉपिक्स कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच सबसे पहले कवर, बाकी सब चीज़ों। और बहुत सिंपल तरीका है, स्टॉप वॉच डाउनलोड करो, एक बिग फुल स्क्रीन स्टॉप वॉच डाउनलोड, अच्छे अच्छे लोग करते हैं, आपको भी करना चाहिए। स्टॉप वॉच डाउनलोड को अपने टेबल पे रखिए और नेट ऑफ कर दी। मैंने इसीलिए रिकमेंड करा है कि आप लोग डेस्कटॉप यूज़ करिए, मोबाइल से दूरी बना के रखिए, सोशल मीडिया ऐप्स और ये नेट बंद करके स्टॉप वॉच ऑन कर, डेस्कटॉप है हमारे, बुक है हमारे, एटलीस्ट यस आशीष। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। एग्जैक्टली अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। फिर चली नहीं गई शायद। नहीं आ रही भैया। नहीं आ रही, आ गई। हाँ अब आ रही। नहीं भैया भैया क्या रीड करना है जो आप भेजेंगे? ओके ओके भैया।
सर मेरे तो 50-60s में आ रहे थे और उससे 15 मार्क्स ज़्यादा ही आए, 15-20। हाँ